Hare Krishna. So we I think we are discussing the section where how Krishna is the supreme person. That thing is explained through various describing about various aspects of Krishna as person. So I think now we have to discuss the section 3.5, that is the transcendental traits of Krishna's personality. Okay. So can anyone start reading? Dhananjay Prabhu. Hare Krishna. Maybe Dhananjay Prabhu is, I think, not audible. Dheeraj Prabhu can read. Dheeraj Prabhu. Okay, Prabhu ji, मैं पढ़ लेता हूँ. 3.5 में. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. 3.5. हाँ, 3.5. Transcendental traits of Krishna's personality. Any person is referred to by his name, form, address, activities, and qualities. Krishna, being the absolute person, also has infinite names, infinite forms, infinite qualities. He performs sweet pastime with his devotees, and he has divine address. But all these traits of the Krishna are divine, holy name. In this mundane world, we may have a couple of nicknames beside our official name. While we have names, these names are different from our person. For example, a person may be named as Dasa, Daya, but he may be cruel by action. The Absolute Truth has unlimited names, and his original name is Krishna. His name is divine as his name and he, the person, are non-different. Just like Draupadi calls out for the name in the Kuru assembly, and the Krishna was there in the person to help her out. In fact, Krishna has invested his full potencies in his name, in his holy name. Thus, in this age of quarrel, it is the holy name alone that can liberate anyone. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्णा प्रभु जी, नीचे कर. हाँ प्रभु जी, होली नेम का पढ़ लिया ना प्रभु. हरे कृष्णा. धीरज प्रभु. धीरज प्रभु, आप थोड़ा सा मतलब आप जो भी पढ़े कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए, आप कुछ पॉइंट्स जो अभी आपको अच्छे लगे. हाँ जी प्रभु जी. मतलब इन शॉर्ट, जैसे हमारा जो नेम है और हमारे बीच में जो क्वालिटीज हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे, जैसे किसी का नाम दया है तो जरूरी नहीं कि उसमें कंपैशन हो, बट जो कृष्णा है और उसका नेम है और तो वो आइडेंटिकल है, एकदम आइडेंटिकल है. जैसे एग्जांपल दिया कि जो द्रौपदी माता है, जब उनको हेल्प की जरूरत थी तो उन्होंने कुरु असेंबली में कृष्णा को मतलब बुलाया, तो कृष्णा पर्सनली प्रेजेंट थे उनके साथ. और वैसे ही जब हम कृष्णा का नाम लेते हैं तो कृष्णा और कृष्णा का नाम नॉन डिफरेंट है. मतलब जब हम कृष्णा का नाम लेते हैं तो वो हमारे साथ स्वयं होते हैं. और फिर इन दिस एज ऑफ क्वारल देयर इज ओनली वन वे दैट कैन लिबरेट अस, दैट इज by chanting the name of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. यस प्रभु जी. हरे कृष्णा. हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए. हाँ, मतलब मैं कुछ ऐसे एक आध दो पॉइंट्स ऐड करता हूँ कि जैसे
So Krishna is present in the sound vibration of his name. So when we speak Krishna, the sound vibration that comes, so Krishna is present in that sound vibration, is non-different from his original form that is present in the spiritual world. And just by hearing his name, we can associate with him because he is actually present in the vibration. So just by hearing him, we can associate with him, and just by hearing thus by associating with him, we can develop all good qualities that Krishna possesses, and slowly we can get rid of all our anarthas. So such is the power of Krishna's name. So I think this is about holy name. So we are actually discussing the traits of Krishna as a person. So so there are 5 traits that generally any person has, that is name, form, address, activities and qualities. So we as a person also possess these qualities, but Krishna's possessing all these things are divine. So how they are divine, so this we are elaborately discussing. So we first described about the holy name, that how it is non-different from Krishna, and so next we will go to divine form, Rupa. So who can read now? Is Dhananjay Prabhu's mic working? Yes, Prabhuji. Yes, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. 3.5.2 से Yes, Prabhuji. In India, anyone can recognize a picture of Krishna. Krishna always holds a flute. His hair is bedecked with a peacock feather. He wears Gunja Mala as well as Vijayanti Mala. Glittering yellow garments dazzle upon him, and his ever fresh charming smile removes all distress of everyone. This form of Krishna is divine, that of eternal existence, knowledge and bliss. Satchit Anand Vigraha is tribute to Krishna. Being Sat or eternal, Krishna has never crosses the youthful age of 16. He is always Nav Yuvana, ever youth. His body never changes, but emits newer and newer transcendent. Krishna knows the past, present, future in totality. In Bhagavad Gita, Arjuna was इसके बाद का नहीं है, नहीं था क्या? Bansal Prabhu. Arjuna was confused when he heard that Krishna has already spoken his divine science to sun god some 120 million years ago, although he is his contemporary only. In reply, Krishna said, many births, both of you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot, O Arjuna. Krishna has perfect memory and knows everything. That is why he is God. Ananda, or full of joy. Krishna is never affected by distress. What to speak of Lord? His devotees are also never distressed. All of us definitely go through much turmoil in life. However, once we turn to Krishna, the smile on our face will return. Since Krishna is the source of all happiness, in essence, Krishna's form is divine, and that form is immeasurable. Like Mother Yasoda could not bind little Krishna in spite of her attempts to join many ropes together until he allowed her to bind him in pure love. यस प्रभु जी. हाँ धनंजय प्रभु, आप कुछ पॉइंट्स आपको जो भी आपको अच्छे लगे याद है आप बता दीजिए. कल जैसे जयंत प्रभु बता रहे थे, तो इसके बारे में कल जयंत प्रभु ज्यादातर डिस्कस किए थे कि लाइक कृष्ण, जैसे मैं उनसे पूछा था कि उनको कैसे याद है या ये सारी चीजें, तो बताए कि हमने बहुत सारे बर्थ लिए हुए हैं, एंड क्योंकि वो भगवान है तो वो खुद सब कुछ याद रख सकते हैं, या हमें भी कभी कभी वो स्पेशल पावर्स देते हैं कि हमें अपना पिछला जन्म ये सारी चीजें याद रहे, वरना नॉर्मली ह्यूमंस अपने पिछले जन्मों को भूल जाते हैं.
जैसे खेल है मुझे अच्छी लगी थी। और उसके बाद कृष्ण का नाम से ही है, मतलब कृष्ण का मतलब ही होता है ऑल जॉय। ऑल तो अट्रैक्टिव। मतलब उनको देख के, हाँ, ऑल अट्रैक्टिव, तो उनको देख के मतलब लोग अपना जो भी डिस्ट्रेस है सब कुछ भूल जाते हैं और हमेशा खुश रहते हैं उनको देखने के बाद। उनके बारे में सोच के ही लोगों की मतलब ज्यादातर टेंशन दूर हो जाती है। राइट। और कुछ? बस राइट। और वो चाहे मतलब उनकी मर्जी से ही होगा, जैसे अगर कोई उन्हें बांधना चाहे तो वो भी उनकी मर्जी से होगा। और कोई खुद से चाह के, मतलब हमारी चाहत बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, मतलब हम चाहें तो नहीं हो पाएगा अगर जब तक वो नहीं चाहते हैं। जैसे यशोदा माता का इसमें बताया गया है कि लाइक वो जब कृष्ण जी को बांधना चाहिए तो उन्होंने बहुत सारी रोक चीज की पर नहीं हुआ, पर जब कृष्ण चाहे तभी वो बांध। राइट। सो इसमें लिखा है कि कृष्णा अलाउड हर टू बाइंड हिम इन प्योर लव। सो मतलब सो फॉर डिवोटीज, वो जो डिवोटीज होते हैं कृष्ण के, वो कम्प्लीटली पूरा मतलब डिपेंडेंट हो जाते हैं कृष्णा पे। तो वो लव देख के कृष्णा उनको उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। मतलब कहते हैं कि मतलब दे अलाउ, like Krishna himself allows them to to be controlled by his mother, his friends. So such is the nature of Krishna. So he cannot be bound by our ego or our austerities, but he can only be bound by our love towards him. So in this about the Krishna's form, there are three aspects, that is Sat, Chit, Ananda. So Sat feature refers to the eternal form of Krishna. So यहाँ पर मतलब कहा है कि Krishna is always Navayuvana. So his body never crosses the age of 16 and his beauty increases. So that is his Sat feature. Second is his Chit feature. Chit feature means that he is full of knowledge. He is always about, जैसे धनंजय प्रभु बताया कि Krishna knows about past, present, and future, and he sometimes gives this power to human beings also by his will. And sometimes human beings can also are able to recollect their past births by the will of Krishna. So that is his Chit feature. And so यहाँ पर एक वर्स है जहाँ पर अर्जुना कहते हैं कि like Arjuna and Krishna were almost of the same age when they performed the pastimes. So अर्जुना पूछते हैं कृष्णा को कि कृष्णा अर्जुना को पहले कहते हैं कि 120 मिलियन ईयर्स पहले इन्होंने सेम जो साइंस ऑफ भगवत गीता था वो सन गॉड को कहा था। तो अर्जुना उनको क्वेश्चन पूछते कि मतलब कृष्णा तो मतलब ऑलमोस्ट उनके सेम एज के है, तो 120 मिलियन ईयर्स पहले मतलब उनको तो 120 मिलियन ईयर्स पहले कैसे उन्होंने कह दिया। तो तब कृष्ण उनको कहते हैं कि I can remember all my births, all my many births. Like Krishna has also taken many appeared many times, and Arjuna has also appeared, but Arjuna can remember all them. Krishna can remember all of them, but Arjuna cannot. So that is the that is the Chit feature of Krishna. And the last feature of last is Ananda, which says that Krishna is full of joy. And it is also says that just Krishna is not just Krishna, but the devotees of Krishna who are completely surrendered to Krishna, they are also completely in transcendental joy and they are never distressed. So we many times we face these questions when we become Krishna's devotees, that does that mean that we will not face material troubles? So it is not that we will not face, but whenever we are put into some difficulty, so we will always take shelter of Krishna and we will always remain unaffected by the troubles. So in this way, we will always depend on Krishna and will never be distressed whenever troubles come. So that is the difference between a devotee and who always depends on Krishna and a non-devotee. And about Krishna's form, Brahma Samhita describes about there are two verses that describes about Krishna's form. So I am just reading the verses. One of the verses, Venum Kvanvantam Arvinda Dalai Taksham Barhavatam Saman Asitam Buddha Sundarangam Kandar Pakoti Kamaniya Vishesha Shobham Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. So this verse describes about Krishna's form. Maybe I can play with Govindam Adi Purusham. It is very nice. Yes, if you want. Yes, I can play. Yeah, sure.
Dheeraj Prabhu, Hare Krishna. You also made a video, na? Do you remember the verse? In that it was there, Venum Kanvantam Aravinda Dayalataksha. थोड़ा सा याद करवा दो, फिर याद आ जाएगा, मतलब मैं भूल गया। हाँ, आपने वो गोविंद मानिक पे बनाया। हाँ, वो मैं भूल गया, थोड़ा सा एक बार स्टार्टिंग याद करवा दो, फिर याद आ जाएगा। हाँ, वो बंसल को प्ले कर रहे शायद। अच्छा, बंसल को प्ले कर रहे क्या? मुझे याद है, पर मैं भूल गया, थोड़ा सा स्टार्टिंग याद करवा दो कभी। उसका स्टार्टिंग ऐसे है, वेनुम क्वान्वान्तम अरविंद गौरवतम समासितम पुत सुंदराभ्याम कतोकी कमलिया विशेषाशोभम गोविंदा आदि पुरुषम तमाम हम वदामि। इतना याद था मुझे। हाँ सही है। ये एक नेक्स्ट भी था ना, मैं भूल गया, वो थोड़ा सा स्टार्टिंग याद था। हाँ, वो गोविंदम आदि पुरुषम एक और वर्ष था, वो अंगनी यश्य सकलेन त्रियवृत्तिमान्ति पश्यांति पान्ति कल्यान्ति चिरान् जगान्ति आनंदा चिन्मया सदुज्ज्वल जला विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। प्रभु जी मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ दिख रही है। और साउंड आ रहा है? साउंड नहीं आ रहा। साउंड, इसका साउंड नहीं आ रहा क्या? नहीं, बस आपका वीडियो ही दिख रहा है। अभी नहीं, साउंड नहीं आ रहा। छोड़िए, फिर बाद में चला देंगे, आप अपना लेक्चर ले लीजिए। ठीक है। सो जैसे ये वर्स में जो मैंने अभी बोला वर्स में ब्रह्म समता 5.30 है वो वर्स, उसमें वेणुम क्वान्वंतम मतलब कृष्णा इज प्लेइंग द फ्लूट, देन इट सेज अक्षम दलायताक्षम व्हिच मींस ही हैज टू आईज व्हिच आर ब्लूमिंग लाइक लोटस पेटल्स। फिर है बरह मींस हिज हेड इज bedecked with peacock feather। फिर है असिता अम्बुद, हिज बॉडी इज रेडिएटिंग द ह्यू ऑफ अ ब्लू क्लाउड। एंड एक और वर्स है ब्रह्म समता 5.31 उसके बाद वाला, उसमें कहते हैं कि कृष्णा's original form is that of Shyam Sundara, that is threefold bending form of Krishna. So threefold bending means Krishna is bending from near the knee, near the waist and near the neck. So this threefold bending form of Krishna Shyam Sundara is very, very attractive. You can see the image, like if you can type in Google threefold bending form of Krishna, then you can see the Krishna's form as Shyam Sundara. It is like you must have seen earlier. So this is about Krishna's form, Rupa. So next we will go to Krishna's divine qualities, Guna. So anyone, Bansal Prabhu, should we like stop or we can continue? We can continue till 7:40. Okay. So Dheeraj Prabhu has read, Dhananjay Prabhu has read. Now Bansal Prabhu, who can read next? Kuntal Prabhu, if he is available, he can read. Yeah, Kuntal Prabhu, can you read? Hare Krishna? No, Prabhuji, I am not prepared for that. No, there is no preparation required. You just have to read, and whatever you like about what you read, you can just speak about. Divine form. In India, divine qualities. Divine qualities. Divine qualities. Krishna has unlimited divine qualities. All of his qualities are very attractive. Devotees are attracted to him for his qualities. Krishna as protector of Draupadi, as chariot driver of Arjuna, as messenger of Pandavas, and as butter thief resides in our heart more than क्या है ये? He more than he as the supreme controller. Our acharyas say
or Acharya says that Krishna has 64 prime prominent qualities in infinite qualities. In particular, his Rupa Madhuri, Venu Madhuri, Leela Madhuri, and Bhakta Madhuri are most talked about. Leela Madhuri. He is the performer of wonderful varieties of pastimes, especially his childhood pastimes. Bhakta Madhuri, he is surrounded by devotees endowed with wonderful love of Godhead. Venu Madhuri, he can attract all living entities in all the universe by playing on his I cannot see the playing on his flute. Next page, Prabhuji. Let's go to page number 47. Is this Roop Madhuri not visible? Yeah. Hare Krishna Prabhu, is Roop Madhuri Yeah, not visible. Roop Madhuri is not visible. Achha. Yes, I cannot see the next lines. What is the next to Venu Madhuri? Now, Okay, next is but Rupa on the Madhuri. next. I will cannot just read see the Rupa next Madhuri. one. Okay. Last is Rupa Madhuri. He has a wonderful excellence of beauty which cannot be rivaled anywhere in the creation. So that is Rupa Madhuri. So Kuntal Prabhu, you can just once whatever you remember you like, you can just in few points you can describe whatever you have read. Prabhuji, please you describe. I cannot describe any line. Any single point also is fine. Anything you like, whatever you read. Anything, no problem. Yeah, you can. How can I go to the previous page? Bansal Prabhu. Prabhuji, I don't know what something problem is happening with it. Just I'll share the screen again. Hare Krishna, is it okay now? Yeah. Divine qualities, yes. Krishna has unlimited. Please, Prabhuji, please read it for me. Explain this for me. Okay, no problem. No I problem. cannot explain Hare this. Krishna. So it is said that Krishna has 64 prominent qualities in infinite qualities. So I have heard sir say that Krishna's qualities are so infinite that even Krishna's expansion Anant or Balram, who is also infinite, he is also not able to completely describe those infinite qualities. So his transcendental qualities are just increasing day by day, and it is not possible to completely describe them. So such is the nature of Krishna's qualities. So when when Balram was infinite, who is not able to describe it, then it's impossible for us to describe it. So Hare Krishna. So that is about the divine qualities of Krishna. And Bansal Prabhu or anyone would like to add, then can add. Prabhuji, many people have the doubt that what is the difference between Krishna and Vishnu. So Krishna has 60 qualities, and these 4 qualities that are written, Leela Madhuri, Bhakta Madhuri, Venu Madhuri, and Rupa Madhuri. So these are not visible in Vishnu form of Krishna. So these 4 qualities are extra. That's why we say that Krishna is the original source, and Vishnu is also an expansion which comes from Krishna.
Like this analysis has been done by Rupa Goswami. So he mentioned all the qualities, like we have 50 qualities in minuscule quantity, and Brahmaji has all those 50 qualities in full, and like Lord Shiva has 55 qualities, and Vishnu has 60 qualities, but these 64 qualities are only present in Krishna. So we can from this also say that Krishna is the supreme personality of God. And like intimacy is there in relationships, intimacy is there in Krishna. Like in Vishnu, there is like rest and opulence is there, but that intimacy is not there. Like gopis know Krishna is the truth. Out of their love, they sometimes forget that Krishna is. Like for example, if Narendra Modi has a son, then that son can make Narendra Modi a horse and ride on it like because also Narendra Modi is such a big person and nobody else can say like that, but because his son has intimate relationship with him, so Modi allows himself to become a horse for his son. So like this, Krishna also has a relationship with us, and if we are able to revive that relationship, then Krishna can go to any extent to satisfy us in that relationship. Yeah, Haribol, Bansal bro very nicely explained this, this qualities of Krishna. Yeah. So Bansal Prabhu, pastimes we should do. Next part. So Ganesh Hasda Prabhu can speak. Hare Krishna. Ganesh Hasda Prabhu, are you there? Hare Krishna, Ganesh Prabhu. I think there is this number is I think of क्या नाम है प्रभु जी what is the number ये नाम दिलीप प्रभु हरे कृष्णा दिलीप प्रभु Maybe he is not audible. Maybe Rajkumar Prabhu can read them. Yeah, Rajkumar Prabhu, Hare Krishna. हाँ, Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. हाँ, can I read? Yes, Prabhu. When you perform activities, those very activities bind us to cycle of birth, death, old age and disease. But Krishna's activities all are auspicious and divinely natural. His stealing of butter, his killing of demons, or his protection of devotees are all of absolute nature. There is no anomaly. आगे भी divine abode. Yeah, you can read. Krishna speaks of his abode in 15th chapter of Bhagavad Gita as follows. 15.6 that supreme abode of mind is not illuminated by the sun or the moon, nor by the fire or electricity. Those who reach it may return to this material world. Just like there are innumerable universes in the material space, there are unlimited spiritual universes in the conscious state. Goloka Vrindavan is the topmost Vaikuntha spiritual planet. That is the Vrindavan, Ayodhya, Jagannath, Puri, Mayapur, much revered by the speaker of truth. So Krishna has a definite addresses. Haribol Prabhu. Thank you, Prabhuji, for reading. You can just Prabhuji, speak some point. Prabhuji, my voice is audible? Yeah. Rajkumar Prabhu, I gave you this verse to remember. Can you recite that verse?
हाँ याद है। I remember I gave you तद हाँ तद भास्यते न सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। very good, nice. You can. Yeah, Rajkumar Prabhu, very nice. You remembered the verse. You can just speak some points, whichever you like. Whatever activities we people have performed that always bind us, whether we done a pious activities or impious activity, that activity will bind us to this material world. But what Lord Krishna does, that liberate us. Not if we hear that activity sincerely, then that activity will liberate us from this material world. And, there is one more verse when you will say that Krishna's activities are transcendental, and those who know that this, they do not return to this material world. There is one verse. हाँ, जन्म कर्मस्य मे दिव्य एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम इति सो अर्जुन। 4.9. Haribol, Prabhu, very nice. And yeah, you can continue. And in this paragraph, Sir talks about the abode of Lord Krishna. In that abode, there is no need of sun or any other thing. In that abode, everything is self-effulgent and self-revealing. Nobody can lose in that abode. But Yes, Prabhuji, Haribol. Yeah, actually, whatever points I was thinking of speaking, Rajkumar Prabhu spoke, like very nice. Like he spoke one important point that Krishna's pastimes are so wonderful that just by hearing about his pastimes with sincerity, we can be purified and can be liberated from this cycle of birth and death. But our activities always bind us, and whether pious or impious. That is very rightly pointed by Rajkumar Prabhu. And secondly, also the verse quoted by Rajkumar Prabhu, Janma Karma Cha Me Divya, is very rightly suitable for this. Like whoever knows the transcendental nature of my appearance and activities does not upon leaving the body take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. So this is very applicable. And about the abode of Krishna, Sir mentions that like Krishna's address is Krishna resides in his original form in Golok Vrindavan, which is the topmost planet of Vaikuntha. So that is the address of Krishna. Like it is completely divine. And about the abode, like in Brahma Samhita, there is a verse which describes about the abode of Krishna. So it says that in the abode of Krishna, everything is made of Chintamani. So Chintamani means spiritual gem. Jayan Prabhu discussed this verse also yesterday. Do anyone remember some? Well, just Jayan Prabhu discussed this verse yesterday, or maybe someone can unmute and say what Jayan Prabhu discussed yesterday. Jayan Prabhu gave many points from that, like what is the nature of that world. You can unmute and speak. Yes, sure. Yeah, anyone can speak. Unmute and speak. Who was there yesterday? He might remember. Yeah. Maybe Dhananjay Prabhu. हरे कृष्ण धनंजय प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण। आपको याद है जयंत प्रभु ने क्या बताया था स्पिरिचुअल वर्ल्ड में? एक श्लोक बताया था ना, मतलब श्लोक आपको याद नहीं होगा पर क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिया था उन्होंने, थोड़ा सा याद है कुछ? वो जो मतलब लोटस वाला वो था जिसमें बहुत सारे पेटल्स थे। कृष्ण जी जैसे वो एक तो उनका जो वृंदावन और एक गौवन या ऐसे कुछ नाम बताए थे जिनको उन्होंने लोटस जैसा बनाया और उसके बहुत सारे पेटल्स थे। नहीं, मतलब और भी डिस्क्रिप्शन दिया था। मैं एक बार वर्ड खोलता हूँ। जैसे किस चीज का, मतलब मुझे लगभग जो कल बताया था वो।
एग्जाम्पल जैन प्रभु ने दिया था कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो गोलोक वृंदावन है, चिंतामणि से बना है, चिंतामणि प्रकरण। और सर ने हाँ, मतलब वो भी बोला था कि 10 साइड से प्रोटेक्टेड है वो बाय विष्णु रूप, समथिंग लाइक दैट। हाँ मतलब 10 साइड से प्रोटेक्टेड है, पर वो अलग वर्ड्स में आता है। क्योंकि मैं एक बार बताता हूँ, मेरे को देखना पड़ेगा क्या क्या था उसमें। हाँ मेरे पास उसमें मतलब एक हाँ बोलिए एक बोलिए। तो लक्ष्मी जी के बारे में बताया था। लक्ष्मी जी के बारे में क्या बताया था, कुछ किसी को याद है कुछ? चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, आप बताना उससे रिलेटेड क्या बताया था। लक्ष्मी, चलो काउस के बारे में क्या बताया था उसमें, काउस के बारे में, गाय। हाँ बताइए। मतलब लक्ष्मी जी के बारे में ये बताया था कि यहाँ पे जो भी लाइक जो भी माता जी होती हैं वो सब लक्ष्मी रूप होती हैं, और वो एज अ, और काऊ के बारे में ये बताया था कि काऊ इनफाइनाइट मिल्क देती हैं और उनको कोई मतलब जरूरत, मतलब इनफाइनाइट मिल्क देती है, इतना याद है। और ट्रीज के बारे में क्या बताया था? वहाँ इनफाइनाइट मतलब कोई हर ट्री कोई भी वैरायटी ऑफ फ्रूट दे सकता है और किसी भी क्वांटिटी में। मतलब आपको याद है ढंग से। हाँ ठीक है, इतना ही है। हाँ मतलब ये था ना। प्रभु जी कुछ बताया क्या? चल हाँ यही है, सही है सही है। ये वर्ष ये वाला है 5.29। चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्ष लक्षावृते सुरभिर अभिपा लयंतम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्य मान्यम गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। ये वाला वर्ष है। हाँ आपने मतलब सारी मतलब उसमें जो भी वर्ष में मतलब चीजें डिस्क्राइब थी आपने सबने मतलब बोल दी वो चीजें, मैं यही बोलने वाला था। सही है। हाँ ठीक है प्रभु जी, आप बता, आप बोल रहे थे, आगे बोल सकते हैं। यस प्रभु जी। हाँ तो मतलब मेरे ख्याल से आज का हमने मतलब ये जो फाइव क्वालिटीज ऑफ कृष्णा है, जो कृष्णा को एज अ पर्सन डिफाइन करती है, वो हमने मतलब इलेबोरेटली स्टडी किया। सो आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है। और बाकी किसी को कुछ डाउट्स है या कुछ एडिशनली कुछ ऐड करना है तो मतलब या तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं या फिर कुछ कमेंट कर सकते हैं। हाँ मतलब किसी को कुछ डाउट है या फिर वो है तो अभी पांचाल प्रभु से पूछ सकते हैं। मतलब पुराने से भी रिलेटेड अगर कुछ है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी डाउट था कि हमने एक बार आपने एक बार बताया था कि हमारी मतलब हम अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहते थे मटेरियल वर्ल्ड में, कृष्णा के इंडिपेंडेंट। तो अगर हम वहाँ पे इतना हैप्पी थे तो हम सेपरेट ही क्यों हुए? मतलब हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी एम आई ऑडिबल? यस प्रभु जी। आपका क्वेश्चन था कि हम वहां पर कृष्णा को सर्व कर रहे थे, हम हैप्पी थे, तो हम सेपरेट क्यों हुए, ये क्वेश्चन है। हाँ मतलब अगर हम खुश भी थे वहाँ तो हमें इंडिपेंडेंटली एंजॉय क्यों करना था? वेरी गुड। मतलब बहुत डीप क्वेश्चन है। मैंने कभी इतना डिटेल में कभी सोचा नहीं इसके बारे में कि क्यों एंजॉय करना चाहते थे हम वहाँ पर। मे बी बंसल प्रभु यू कैन सम ऐड समथिंग। प्रभु जी मतलब इसका रीजन तो नहीं है, बस मतलब आपने मतलब मैंने जहाँ तक सुना है, जितना सुना है कि आप में somehow enjoying टेंडेंसी आई सेपरेट फ्रॉम कृष्णा और आप मटेरियल वर्ल्ड में गिर गए। तो आप रीजन तो पता नहीं है क्यों आई। रीजन शायद कॉजलेस, मतलब हर चीज का आप रीजन डिफाइन नहीं कर सकते ना। मतलब एक्चुअली सर बताते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर चीज कॉजलेस होती है। जैसे रुकिए धनंजय प्रभु, एक बार मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था ना, आप मेरे को याद करके बताइए मैंने आपको क्या बताया था कि नल कुबेर का नारद जी ने मर्सी क्यों दी। तो मैंने आपको उसका रीजन बताया था, एक बार याद करिए क्या बताया था मैंने। आपने बताया तो कृष्ण अपनी मर्जी से करते हैं, मतलब वो जो करते हैं उसके पीछे रीजन नहीं निकाल सकते हम। जो मटेरियल वर्ल्ड की चीज है उसमें भले रीजन आ जाए,
बट उनके में नहीं मतलब नहीं, आपने उनके आपने हिसाब से मुझसे होता है। नहीं, आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि नल कुबेरा ने ऐसा क्या किया था कि वो सिंफुल हाँ एक्ट कर रहे थे, उसके बाद उनको मतलब इतने कृष्णा ने लिबरेशन का मौका मिल गया। तो मैंने आपको क्या आंसर दिया था उसका? यही आप बोले थे कि लाइक जो कृष्णा करते हैं उसके पीछे कोई खास रीजन नहीं होता, मतलब वो उनके ऊपर होता है। जैसे उसका रीजन नहीं आप बता दो कुछ। एक दो लाइन में बताइए, मतलब मैंने एकदम आपको पर्टिकुलर बताया था, मतलब एक दो वर्ड्स में, एक दो लाइन में। पता नहीं, मतलब मुझे तो टोटल यही समझ में आया था कि जो कृष्णा करते हैं लाइक वो अपनी मर्जी से करते हैं, तो उसमें हम रीजन नहीं खोज सकते। हाँ मतलब कुछ कुछ ठीक है। किसी और को याद है मतलब एग्जैक्टली मैंने क्या बोला था? राजकुमार प्रभु या धीरज प्रभु याद है आपको? आप थे शायद उस डिस्कशन में। हरे कृष्ण, धीरज प्रभु। जी हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे याद नहीं है। अच्छा, आपके फोन में नहीं शायद। राजकुमार प्रभु आपको याद है? प्रभु जी वो मतलब जो नारद जी मतलब कुबेर के दो बेटे नहा रहे थे, मतलब तो उन्होंने अशिष्ट व्यवहार किया था तो उन्होंने श्राप दे दिया था, यही वाला मतलब, और मर्जी भी दिया था कि तुम जाओगे। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उसके बाद धनंजय प्रभु ने क्वेश्चन पूछा था कि मतलब नल कुबेर ने ऐसा क्या किया था कि उनको कृष्णा के लिबरेशन का मौका मिल गया, मतलब कृष्णा के आंगन में खेलने का मौका मिल गया एज ए ट्री बन के सारे इवेंट्स देखने का। तो मतलब उनका क्या रोल था? तो उनका मैंने क्या आंसर दिया था, याद है? हाँ, तो आपने कहा था कि सब कुछ कॉजलेस होता है, मतलब वो डिवोटी जिसको मतलब मर्जी देना चाहता है वो दे सकता है। तो वो नारद जी मतलब डिवोटी थे तो उन्होंने मर्जी कर दिया, इसलिए हुआ था। हाँ मतलब मैंने बताया था कि जैसे जो भी मटेरियल वर्ल्ड में चीजें होती है वो आप कॉज और इफेक्ट की टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, पर जो भी स्पिरिचुअल चीजें होती है उसको आप कॉज और इफेक्ट की टर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो सब कॉजलेस होती है। और मतलब क्योंकि जो डिवोटीज होते हैं वो प्योरली मतलब कृष्णा कॉन्शियस जो प्योर डिवोटीज होते हैं, तो उनकी भी एक्टिविटीज आप कॉज और इफेक्ट के टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्पिरिचुअल प्लेन पे होता है और स्पिरिचुअल प्लेन में सारी एक्टिविटीज कॉजलेस होती है। तो आप कृष्णा की कोई भी एक्टिविटी को आप रीजन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्णा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सारी चीजें कॉज एंड इफेक्ट के टर्म्स में एक भी चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप मटेरियल वर्ल्ड में सोच सकते हो कि हाँ ये हुआ तो इसका रीजन क्या होगा, पर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो लॉजिक नहीं लगा सकते। तो मतलब शायद क्योंकि मतलब उस टाइम हो सकता है अपन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, तो मतलब मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, पर मतलब कोई कॉज, मतलब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड की चीज पे कॉज एंड इफेक्ट नहीं लगा सकते, तो आप मतलब कह नहीं सकते कि क्या कॉज रहा होगा कि अपन गिरे होंगे, मतलब क्या या फिर ऐसा डिजायर आया होगा, मतलब मेरे हिसाब से। और सर से पूछना पड़ेगा एक बार, पांचाल प्रभु से, और एक बार कंफर्म करना था। पांचाल हाँ, प्रभु। एक बार सर से पूछ लेंगे, बट मुझे जितना पता है कि हम मतलब ये इनफाइनाइट, हम मतलब बर्थ से हम यहाँ पर मटेरियल में सफर कर रहे हैं लाइफ आफ्टर लाइफ, मतलब ऐसा कोई ऐसे प्रॉपर ऐसे टाइम इवेंट नहीं है कि हम इस टाइम पे हम फॉल डाउन हो गए, मतलब इनफाइनाइट टाइम से हम सेपरेशन मतलब मटेरियल में हम सफर कर रहे हैं। तो मतलब ये एग्जैक्टली मतलब ऐसे कोई टाइम इवेंट नहीं है, मतलब कि इस टाइम से हमारा फॉल डाउन हो गया और हमारा मतलब मटेरियल में जर्नी स्टार्ट हुआ। तो ये जो क्वेश्चन पूछे थे, मतलब एक बार एग्जैक्ट रीजन एक बार सर से हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, बंसल प्रो एक बार मेरे ख्याल से एक बार आज शायद एक बार पूछ लेंगे। ठीक है। हाँ मतलब ये पांचाल प्रभु बोले, मैंने भी सर से इतना सुना है कि मतलब हम टाइम मेमोरियल से हैं, तो मतलब हम ऐसे हाँ डिफाइन नहीं कि कब हम गिरे, हम हमेशा से मतलब हाँ काइंड ऑफ मतलब डिस्कस करना पड़ेगा, श्योर नहीं हूँ मैं। पर मतलब वो नल कुबेरा वाले उस पार्ट में मतलब वो कंटेक्स्ट सही है। जैसे मतलब कृष्णा की कोई भी एक्टिविटीज होती है वो आप कॉज की टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, मतलब बाहर के लोगों के लिए बता सकते हैं, पर मतलब जैसे मतलब भगवत गीता में भी दे रखा है ना, जैसे कि मतलब हाँ वो वर्स बताइए जिसमें भगवत गीता में लिखा है कि कृष्णा क्यों आते हैं, मतलब कृष्णा का रीजन क्या होता है आने का। हरे कृष्ण, धीरज प्रभु या फिर राजकुमार प्रभु? प्रभु जी ताकि वो अपने डिवोटीज को हाँ। लाइक
डिवोटीज का कल्याण कर सकें। सब वर्ड demons सही को वर्ड। हाँ ये मतलब 1 मिनट में भूल गया, मुझे याद है वो 4.6 है, मतलब 1 मिनट। ये वर्ष नंबर में ही वर्ष। 4.7 हाँ मुझे थोड़ा सा याद करा दीजिए, मैं भूल गया। यदा यदा हि धर्मस्य। हाँ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानात् धर्मस्य तदात्मानस्य सृजान में हम परिपुराणाय साधुना विनाशाय सब पुराना ही नहीं है, परित्राणा है, परित्राणा है। आपने तो मीनिंग चेंज कर दिया। अच्छा हाँ मतलब दरिद्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनात्काय संभवानि युगे युगे। तो मतलब इसमें वैसे रीजन देते हैं, मतलब कृष्णा की ये जनरल रीजन देते हैं, पर एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि मतलब ये ऑफिशियली ऐसे रीजन दिया है कृष्णा ने आने का, पर मतलब ये कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। कृष्णा की एक्टिविटीज हमेशा मतलब कॉजलेस होती है, आप उसको वैसे डिफाइन नहीं कर सकते कि मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इसी कारण से कृष्णा आता है, वो उनकी मर्जी होती है इसीलिए आता है। मतलब हो सकता है ये एक्टिविटी सेम करते हो वो, मतलब सर ने तो इतना ही बताया जहाँ तक मेरे को पता है। एक बार 5 साल पे वो और थोड़ा सा क्लियर कर दे। मतलब प्रभु जी मतलब उसके जो पर्पट था, जो ये वाले वर्ड्स था, तो उसमें लिखा हुआ था कि डीमंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए तो भगवान किसी और को भेज सकते थे, बट फॉर लाइक अपने डिवोटीज का कल्याण करने के लिए वो आते हैं। लाइक प्रभुपाद पर्पट में तो ये लिखा था, जो प्रभुपाद जी का जो पर्पट था उसमें ये लिखा था। यस प्रभु। हाँ धीरज प्रभु सही से पॉइंट आउट किया, मतलब जैसे मतलब डीमंस को किल करने के लिए कृष्णा को पर्सनली आने की जरूरत नहीं है। मतलब वो या तो किसी को भेज भी सकते हैं, और मटेरियल जो उनका मटेरियल एनर्जी है कृष्णा की, उसी से मतलब उनको डीमंस को मार सकते हैं। सो उनको उसके लिए पर्सनली आने की जरूरत नहीं है। और जो सेकेंडली पॉइंट आउट किया कि कृष्णा कम्स टू एंजॉय लाइक गिव प्लेजर टू हिज डिवोटी एंड ऑल्सो एंजॉय दिस रिलेशनशिप बिटवीन देम। सो आई थिंक ये पॉइंट भी काफी वैलिड है। मतलब फाइनली मतलब कृष्णा कम्स बाय हिज ओन स्वीट विल, जो मतलब मुझे जितना समझ में आता है बंसल प्रभु यही पॉइंट आउट किया। एंड फाइनली मतलब कृष्णा टेक्स प्लेजर विद हिज डिवोटीज एंड वांट्स टू गिव प्लेजर टू द डिवोटीज। सो आई थिंक इस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछने की मतलब आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए कभी भी कि व्हाई डिड कृष्णा डू दिस। जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि कृष्णा ने ये क्यों किया, कृष्णा ने ये क्यों किया, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस का कोई सेंस नहीं बनता और इन तरह के क्वेश्चंस का कोई आंसर भी नहीं होता, क्योंकि मतलब वो ये ना कि कृष्णा की विल फ्री विल होती, तो मतलब आप नहीं बता सकते कि कृष्णा ने क्योंकि आप हो सकता है कोई एक्सटर्नल रीजन दे दे, पर मतलब आप ये मतलब इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है। एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि कृष्णा ने कोई भी एक्टिविटी क्यों की उसका कोई आंसर नहीं है, या फिर आंसर है तो खाली कृष्णा को पता है। या तो मतलब और बंसल प्रभु आपको एक क्वेश्चन पूछे थे, डू यू रिमेम्बर द वर्स व्हिच सेज कृष्णाज नेम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। सो प्रभु जी मुझे तो प्रभु जी ऐसे वर्स याद नहीं है। प्रभु जी आप बता दीजिए। चैतन्य चरितामृत में है। रुके मैं उसका वो शेयर कर देता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ उसका वो क्वेश्चन मतलब मैं उस स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी स्क्रीन दिख रहा है? ओके। मैं एक बार कोई राजकुमार प्रभु एक बार इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। हाँ प्रभु। The holy name of Krishna is transcendently blissful. It bestows all spiritual benedictions. For it, Krishna himself, the reservoir of all pleasure. Krishna's name is complete and it is the form of all transcendental mellows. It is not a material name under any condition, and it is no less powerful than Krishna himself. Since Krishna's name is not contaminated by the material qualities, there is no question of its being involved with Maya. Krishna's name is always liberated and spiritual. It is never conditioned by the laws of material nature. This is because the name of Krishna and Krishna himself are identical. हरि बोल। हाँ तो मतलब इसमें जैसे लास्ट लाइन आती है काफी फेमस, अभिन्नत्व नाम नामेना,
मतलब हम्म नॉन डिफरेंट नाम ना अपना पर्सन। तो ये पद्म पुराण का है। तो मतलब ये हम्म। प्रभु जी इनको दे दोगे याद? हाँ हाँ, अच्छा है वो, बहुत अच्छा है, मतलब मुझे, मैं भी याद ज्यादा कर लूंगा ये वर्ड। तो नहीं है, आसान ही है। मेरे को भी याद नहीं था, मैंने कॉपी में ढूंढा, मेरे को इतना याद था, सर ने एक बार लेक्चर में बताया था और मैंने लिख रखा था, तो मैं बस हाँ हाँ कॉपी में हाँ लिख रहा था, मेरे को 15 मिनट लगे थे, तो याद नहीं आ रहा था ये भी। ठीक है हाँ सर जी, हाँ आप मैं आपको भी लिंक भेजूंगा और इनको दे दूंगा ये याद करने के। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, नाइस, ठीक है। ठीक है और प्रभु। कुछ प्रभु जी, किसी को कुछ क्वेश्चन हो गया ना मेरे ख्याल से अभी? हाँ, अगर किसी का और कोई डाउट है तो। हाँ प्रभु जी, यस प्रभु हरे जी, हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा, वो पूछना था कि जब हमारे पास एक जस्ट परफेक्ट वर्ल्ड था, जो जैसे स्वर्ग या वैकुंठ बोल रहे हैं, तो फिर हमें ऐसे वर्ल्ड में मतलब इसकी जरूरत क्या थी, ऐसे वर्ल्ड की? कैसे वर्ल्ड की इतनी जरूरत सारी क्या थी? मिजरीज से भरे जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इतनी सारी मिजरीज वाली वर्ल्ड की जरूरत क्या थी जब वैकुंठ था? तब भगवान जब एक ऐसा अच्छा वर्ल्ड बना चुके थे, तो हमें मतलब ऐसे वर्ल्ड बनाने की जरूरत ही क्या थी? गुड क्वेश्चन। मतलब जितना मुझे समझ में आता है, मतलब जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जैसे वैकुंठ प्लैनेट्स आपने कहा, तो हाँ अ, इस प्लेस पे मतलब अगर हमें रहना है, सो वी हैव टू लिव एज अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा, वेयर विल टू सर्व कृष्णा एंड तो कृष्णा इज द आखिर मास्टर। हमें भी तो भगवान ने ही बनाया है, तो फिर हाँ। मतलब ये जो डिफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से हम कृष्णा को छोड़ दिए या हमसे गलती हुई, ये डिफेक्ट भी हम्म। तो हमें आखिर बनाते समय ही डाले गए ना, कि लाइक तुम ऐसा कर सकते हो, ये सभी तो उसी समय डाले गए। जब उतना परफेक्ट वर्ल्ड बना रहे थे, सब कुछ बना रहे थे, तो फिर हम लोग ऐसा डिफेक्टिव जैसा क्यों बना दिए कि लाइक हम उन्हें छोड़ दिए और फिर अब इस वर्ल्ड में हमें नहीं मतलब नहीं, ये लाखों साल से ऐसे घूमना पड़ रहा है? ये डिफेक्ट नहीं है एक्चुअली, कृष्णा ने हमें मतलब फ्री विल दे रखा है। फ्री विल मतलब कि, मतलब जब जब एक लव ये होता जो है। फ्री विल की डेफिनेशन है, हाँ मतलब हाँ। ये तो बाद में हुआ ना, लाइक जब हमें बना दिया गया इस तरह का, उसके बाद बोल दिया कि लाइक तुम्हारे पास फ्री विल है, अगर उस समय हमें वैसा ही बनाते हैं कि लाइक हम उन्हें सर्व कर रहे हैं और करते रहे, तो तो वो उस उस समय भी तो बात वही हो जाती। तो अरे उसमें वो प्रभु जी, रिलिशमेंट नहीं है ना प्रभु जी। मैं अरे मतलब अगर, वाला यस, एग्जाम्पल दीजिए ना सर, सर वाला एग्जाम्पल दीजिए ना। आप तुम किसी के सर पे गोली रख के बोलो कि तुम मुझे प्यार या करो, वो डर के बोल एग्जैक्टली। देगा, पर वो क्या सही में प्यार होता है क्या? और अगर बचपन से वही चीज उसे प्यार से समझाई गई, तो उसका तो कभी नहीं छोड़ेगा ना। जब उसे जैसे बनाते समय ही वैसा कर दिया गया है, लाइक वो बचपन से कि वो कर रहा है, तो फिर उसको ही अरे छोड़ेगा। बनाया नहीं है, कृष्णा ने हमें फ्री विल दी है एकदम, कि तुम चाहो तो रह सकते हो, नहीं चाहो तो तुम्हारी देखो, मर्जी है। कि मतलब वो नहीं रहा ना, फिर प्यार नहीं रहा ना, अब तो तुम अगर ठीक है, मतलब वो हम चाहें तो उनके साथ नहीं रह सकते, तो फिर उन्होंने हमें ऐसी दुनिया में क्यों भेजा? लाइक ये तो ये हुआ ना कि हम तुम्हें फ्री विल दे रहे हैं, तुम सब कुछ करो, और फिर ये करोगे तो हम तुम्हें ऐसा करा देंगे। तो ये ऐसा क्या? हुआ ना कि लाइक उन्होंने हमें फ्री विल दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और जब हमने कुछ भी किया तो लाइक हमें सजा देके मतलब लाखों सालों के लिए यहाँ भेज दिया गया। नहीं, अरे तो तुमने कुछ अननेचुरल मांगा ना, बात ये है, मतलब जो चीज नेचुरली नहीं थी तुमने वो डिजायर कर ली, तो मतलब जो पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो, तुम नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशनली भगवान नहीं हो, पर तुम भगवान बनना चाहोगे तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, इल्यूजन में डालना ही पड़ेगा। अरे वो वाला उस दिन एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, एक मिरर वाला और बच्चे वाला, किसको याद है? धीरज प्रभु, आपको याद है? धीरज प्रभु, मैंने एक मिरर, एक चांद वाला बच्चे का एग्जाम्पल दिया था। हरे कृष्ण धीरज प्रभु। जी याद है हरे प्रभु। हाँ, वो लाइक एक बच्चा मिरर में देख के, मतलब अगर उसने मून को मिरर में देखा, वो उसी को ही असली समझने लग जाता है, बट असली में वो नहीं है असलियत, असली में तो चांद अलग है। शायद ये एग्जांपल था। आपने थोड़ा सा कंटेक्स्ट चेंज कर दिया। मतलब मेरा डाउट ये था कि आप, एक बच्चा है वो विश करता है कि मेरे को चांद हाथ में चाहिए, तो वो नेचुरली पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। ये मानते हो ना धनंजय प्रभु? मतलब एक बच्चे को लाके आप हाथ में चांद नहीं दे सकते, इतना पता है ना आपको? बट वो बच्चा वो मांग रहा है, ये भी तो हम ही ने दिया है ना, मीन भगवान ने दिया। लाइक ये जो सोचना है, लाइक
उसे चांद चाहिए और वो डालते ही नहीं, तो चांद मांगता ही नहीं, तो ऐसा होता ही नहीं, एंड हम भी पीस में जी रहे होते हैं। मतलब फ्री विल क्या होती है तो एग्जैक्टली नहीं पता, पर मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि मतलब जैसे चांद है, अब चांद को मतलब अब ये नहीं पता ये बच्चे, अब वही हो गया ना, मतलब कॉजलेस हो गए ना, अब हर चीज आप कॉज इफेक्ट के टर्म्स में नहीं डिफाइन कर सकते। हाँ, मतलब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए था भी नहीं रहा। मैं जैसे ये कर रहा हूँ, जैसे आप चांद की बात कर रहे हैं ना, तो लाइक वो बच्चे को आप बोले कि तुम चांद मांगो, मतलब हम तुम्हें ये इच्छा दे रहे हैं कि तुम चांद मांगो, एंड फिर जब उसने चांद मांगा तो बोले नहीं, तुमने गलत मांग लिया, अब तुम्हें सजा मिलेगी। सबने थोड़ी मांगा, और आपको पता है 1/4 ही है यहाँ पे, 3/4 अभी भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, मटेरियल वर्ल्ड 1/4 ही है सर, तो सबने थोड़ी मांगा, कुछ लोगों ने मांगा, तो इच्छा मतलब वो तो वही तो आपकी इच्छा से आया, मतलब भगवान कॉज नहीं है आपकी सफरिंग का, अपन खुद ही कॉज है अपनी सफरिंग का। मतलब एग्जैक्टली फ्री विल, मतलब आपका जो क्वेश्चन थोड़ा सा ये हो गया कि हमारे अंदर वो डिजायर कहाँ से आया, मतलब वही थोड़ा सा वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसा धीरज प्रभु ने पूछा कि हमारे में वो डिजायर कैसे आया एंजॉय करने वाला एकदम से, या फिर कैसे आया, तो मतलब वो अभी क्लियर नहीं है, वो थोड़ा सर से पूछना पड़ेगा। तो मतलब मैं आपको मतलब हाँ मतलब यही पांचल प्रभु इनका शायद यही डाउट है, मतलब इनडायरेक्टली, तो कि मेरे अंदर वो डिजायर कहाँ से आया, वो भी तो भगवान से आया है, मतलब इनडायरेक्टली इनका शायद यही कहना है। हाँ, बेसिकली वही प्रभु जी लाइक जो भी डिजायर, एक बार गलत डिजायर जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, ये भी तो वहीं से आया, और जब ये उन्हीं से आया, उन्होंने ये दिया, तो फिर डिजायर की वजह से सजा क्यों नहीं दी? ठीक है, ये सर से पूछ के बताएंगे, मतलब इसका एकदम क्लियर नहीं है कि वो डिजायर कहाँ से आया हमारे में, मतलब सोर्स क्या है उस डिजायर का। मतलब बोल रहे कि वो डिजायर जो आया सेपरेटली एंजॉय करने का, उसका सोर्स क्या है, ये क्वेश्चन है क्या आपका प्रभु? नहीं, मतलब वो डिजायर, हाँ बेसिकली एक तरह से वही है कि उसका आप सोर्स बोल क्या रहे है, और कि जब वो आया हम तो कृष्णा उन्हें के रोका पार्ट एंड किसी पार्सल है, तो वो मतलब डिजायर कृष्णा से ही आया, ऐसे बोल रहे आप? हाँ, तो मैं आप ये कहना फिर हम चाहते हो, नहीं आप ये कहना चाहते हो कि मैं मतलब मेरी कोई गलती नहीं है, कृष्णा ने मेरे अंदर वो डिजायर डाला, मतलब इनडायरेक्टली आप ये कहना चाहते हो? हाँ, मतलब मुझे तो उस डिजायर के बारे में पता भी नहीं था, पहले उन्होंने मुझे बताया कि लाइक तुम्हारे अंदर ये डिजायर है और तुम ये सब कुछ कर सकते हो, फिर मैंने वो किया, और मैंने वो किया तभी लाखों साल से आऊँ। अगर वो बताए नहीं होते कि तुम ये कर सकते हो तो मैं वो नहीं ट्राई करता, और मैं नहीं ट्राई अरे तो करता। वही बात हो गई, बताए नहीं होते तो फिर वही हो गया ना, फिर प्रेम नहीं रहता ना, फिर तो जबरदस्ती हो जाता ना, वो उन्होंने आपको फ्री विल दिया इसीलिए तो, मतलब फिर जबरदस्ती जब थोड़ी नहीं करना है। बताते, नहीं जब नहीं बताते तब तो फिर वो नहीं होता ना, मतलब फिर काहे का वो, जैसे बंदूक सर पे रखने वाली बात, जब हमें उस चीज के बारे में पता ही नहीं। जैसे कोई बच्चा अगर कुछ मांग रहा है तो उसके बारे में पता है तब मांग रहा है, जैसे किसी को आजादी चाहिए तो उसे पता है, उसके बारे में तो मांग रहा है। यही तो हमारी खास बात है, कृष्णा ने हमें बताया है सब कुछ, फिर हमें कुछ करने के लिए बोला, और फिर तो प्रोग्राम रोबोट हो जाते ना हम, जैसा हमें बताया जा रहा है वैसा कर रहे हैं, फिर हमारे में क्या फ्री विल होती बताओ? अगर कृष्णा हमें ऐसे ही बता देते तो हमारी फ्री विल क्या होता? तो उन्होंने मतलब हमें फ्री विल दी और फ्री विल के हिसाब से सजा दे दी, लाइक उन्होंने पहले बोला ठीक है तुम प्रोग्राम रोबोट्स नहीं हो, तो मतलब जो चाहो वो सोच सकते हो, अब से तुम्हें अपन जो भी हो रहा है हमारी चॉइस के हिसाब से हो रहा है, तो हमें फ्री विल दी गई है और हमारी चॉइस के हिसाब से हमें जो भी हो रहा है, अरे वो समझ आ जाएगा धीरे धीरे, आप थोड़ा ज्यादा पढ़ोगे, थोड़ा मतलब चैंटिंग थोड़ा पढ़ाओ, फिर समझ आएगा अपने आप। मतलब थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, मतलब ये थोड़ा बहुत फिर डीप क्वेश्चन है, मतलब ये तो मतलब जैसे हम तो 1 साल से कर रहे हैं, मतलब जो मतलब काफी प्रैक्टिस हरे कृष्णा नहीं कल मैं यही क्वेश्चन प्रभु जी प्रभु से पूछने वाला था, लेकिन लास्ट में भूल गया था, लास्ट आते धीरज तक धीरज प्रभु कुछ बोलना चाह था, रहे भूल गया। हरे कृष्णा, धीरज प्रभु कुछ बोल रहे हैं। प्रभु जी एक बार मैंने सर से क्वेश्चन पूछा था, विपुल सर से, कि हमारे बीच में लाइक जो भी डिजायर्स हैं और वो लाइक जो भी गलत क्वालिटीज हैं वो कैसे आती हैं, तो मतलब शायद मैं उससे थोड़ा सा बता पाऊँ। लाइक तो सर ने बोला था कि जो गॉड के पास होते हैं हमेशा गुड क्वालिटीज होती हैं, बट जब वो हमारे पास भी गुड क्वालिटीज थी इनिशियली, बट वो जब हम सेल्फिशनेस को साथ में जोड़ लेते हैं तब वो बैड क्वालिटीज बन जाती हैं। जैसे मनी फॉर लाइक मनी अर्निंग फॉर ओनली मी बिकम्स अ बैड थिंग फॉर द सोसाइटी। लाइक तो ये हमारे जो बीच में जब सेल्फिशनेस हम है, सेल्फ आ आखिर जाती इसको है भी तो किसी ने बनाया ना, और किसी ने मतलब उन्हीं ने, तो वो तो
वो तो हमें तो सेल्फ विल दी है ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं। वो तो खुद आप तो खुद सोचो ना कि हमें ओपनली कुछ भी सोचने की परमिशन दी है, वरना तो हमारा माइंड कंस्ट्रेंट रहता है ना कि हम सिर्फ। अरे उनका मतलब कोई दूसरे लोगों का मेन डाउट है कि फ्री विल क्या होती है और कैसे होती है। फ्री विल बहुत टॉपिक है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा चैंटिंग करना पड़ेगा समझने के लिए। मतलब सर तो यही पूछता है, अगर फ्री विल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते तो सर बोलिए कि चैंट मोर और तुम अगर आपके सर से पूछते हैं तो सर थोड़ा बहुत कुछ एक्सप्लेन करो, पर ये बोलेंगे कि चैंटिंग करो थोड़ा और अपने आप समझ आता है। तो मतलब ये बहुत डीप टॉपिक है, छोटा मोटा टॉपिक नहीं आता, आराम से और समझा दें तो इसके लिए बहुत आपको मतलब चैंटिंग करके मतलब ये बहुत डीप टॉपिक है। मतलब ऐसे समझ नहीं आएगा, मतलब मेरे को भी नहीं पता है क्या है, मेरे को भी कुछ ढंग से समझ नहीं है। पर मतलब सर तो यही बोलते हैं कि मतलब मतलब ऐसे जो भी डीप टॉपिक्स के जब भी क्वेश्चन उठते हैं तो सर यही बोलते हैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके कि थोड़ा चैंटिंग करो अपने आप समझ आ जाएगा। तो मतलब आप थोड़ा चैंटिंग बढ़ाइए और मतलब आपको अपने पक्का अपने क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। 5 को आप थोड़ा और बता दीजिए उनको। मतलब मेरे को भी मतलब मेरे पास भी ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस नहीं होता। मेरे को भी मतलब मैंने भी मतलब ज्यादा चैंटिंग वगैरह इतना ज्यादा हुआ नहीं, तो मेरे पास भी मतलब इतना प्रॉपर आंसर नहीं है। बट आई गेस कि चैंटिंग इज द ओनली सोल्यूशन, मुझे भी यही लग रहा है। अदरवाइज आप सर से कभी आपको मौका मिले तो आप सर से भी एक बार पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो मेरे ख्याल से आपको मतलब बेटर आंसर मिलेगा। बट एज ऑफ मतलब मैंने तो ये ऑब्जर्व किया कि मतलब जो भी डीप क्वेश्चन होते हैं सर मोस्टली थोड़ा बहुत समझा के ये बोलते हैं कि थोड़ा चैंटिंग बढ़ाओ मतलब समझ आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत डीप टॉपिक है। तो सर आप कितना माला कर रहे हो? आप कितना माला कर? मैं तो 2 करता हूँ। करती थे अरे प्रभु जी आपके सामने कभी 1 से 2 पे आया हूँ। अरे कल जयंत प्रभु ने भी तो यही बताया था कि हम मतलब जितना हो सकता है उतना ही बताते हैं। और मतलब कल जयंत प्रभु ने इतना ढंग से बताया था कि चैंटिंग में सारे आपके क्वेश्चन का आंसर है। याद है आपको बताया था, हम एक्सप्लेन करते हैं और बोलते हैं कि चैंट एंड यू विल अंडरस्टैंड मोर। याद है जयंत प्रभु ने बताया था। ठीक है, तो आप थोड़ा चैंटिंग बढ़ाइए, 4 राउंड करिए कल तक, है ना? तो आपको अपने क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। धीरे धीरे ट्राई हाँ धीरे धीरे ट्राई करूंगा पढ़ाने की। हाँ, अरे लेट हो गया सुनना है मुझे। हाँ से वर्ष सुनना 5 तो हाँ आप चाहे तो रुक सकते हैं, मतलब मैं इनसे